Good morning, everyone. Today again I will teach you list concept, and most probably this will be my last class of list. After that, I will teach you strings. So now I'll start the next concept, that is two-dimensional list, 2D list. I'm sharing a screen for you so that you will be able to see what I'm basically going to teach you. And I'll start Python now. 3.9 I'll start. Python started. File, new. So I'll start here a 2D array. So as I said, give anything name, double dimension, D, A, B, C, D, anything. Always give two square brackets. First you give some values, that is 1D के जो फॉर्मेट में हम स्टोर करते थे, but in 3, 6, 7, then again 5, 7, 8, कुछ भी दे सकते हैं आप वैल्यू, and then you close it. Finally you print it, you will get a result of 2D array. This is the most simplest way I am teaching you. Double dimension, DD कर देता है, चलो. So this is the result come, but it is not showing exactly in matrix or tabular format. For that, what I will do here, I will generate a loop for I in range, that is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 in fact, then colon for j in range 3 colon print a of I. नेस्टेड लूप अगर याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. Let's see it works or not. END is equals to space and then print here so that it gives you result in tabular format. Now see here, I will display it works or not. A कैसे लिख दिया, B, run. Okay. Now see the result is coming in tabular format. Okay. Only Nishal is there again. ठीक है, no problem. So how it is showing, do you know Nishal? सबसे पहले जो प्रोसेसिंग हो रही है मैं यहाँ समझा देता हूँ. आपने डबल डायमेंशन एरे पढ़ा है, वही प्रोसेस है. दैट इज I equals to 0, then j is equals to 0, j is equals to 1, j is equals to 2. So first time it is printing 0, 0, then 0, 1, then 0, 2. These values, that is 0, 0, 0, 1 and 0, 2 is printed in one line because I have used here end is equals to 1 or 2 spaces I have given. After that, once the first row is printed, it will take the next value of I equals to 1, then again j is equals to 0, j is equals to 1 and j is equals to 2 होगा. 1, 2 जैसा लिखा था वैसे लिख देते हैं. 1, 2. Once I, then next value of I will be 2, then j is equals to 0, 1 and then 2, that way. So it is printing, and after each row is printed, that is first row with all the columns, we are using print statement here. Understood, Nishal? तो आपको बात समझ में आ गई. So अब मैं इसी पे आगे कुछ प्रोग्रामिंग करूंगा. 1 मिनट में थोड़ा सा सिलेबस चेक कर लूं, so that I will come to know exactly what I have to teach you. ठीक है, थोड़ा सा मुझे एक बार सिलेबस बुक निकालता हूं.
ओके 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 ठीक है ओके। अब इन्होंने इसको जो अभी आपने किया है n एलिमेंट्स तक अगर आपको एंटर करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं, तो उस पे बेस भी प्रोग्रामिंग सिखाई है। अब उसको कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अब आप पे होगा कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। सो व्हाट आई विल डू हियर, I will use m and n. M is equals to int input enter number of rows. N is equals to int input enter number of columns. Then next I will use here, suppose I have taken here d for double L. So d is equals to initially 0. Now what I will do here for I in range, इसको हम m कर देते हैं, number of rows. So once it is started, so पहले आपके एक रो वैल्यू होगी, तो r is equals to मैंने empty कर दिया, ओके। देन j को चलने दिया, ध्यान से देखना, एंड इनपुट कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी डेटा ले लो, एलिमेंट ले लो, एलिमेंट ओके, ई ले लो, ए बी सी डी ई ले लो। ई इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर डेटा। जैसा कि मैंने सिखाया था आपको, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ पे लिख देंगे r डॉट अपेंड, मतलब फर्स्ट रो की वैल्यू डाल रहे हैं e, ओके। वंस one row value is entered, instead of this print, what I will write it here, d dot, देखो टैब स्पेस का ध्यान रखना, d dot append and then here you write r. That means with the array d we are adding, जैसे कि मैंने लिखा था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, कि suppose this is square bracket started, that is d basically. Try to get my concept. निश्चल में सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूँ। तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये d स्टार्ट हुआ, समझ में आया? एंड देन r स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एंटर हुई। बेटा मेरे से कोई फायदा नहीं उठाना चाहता, तो ये बेवकूफ़ी बच्चों की है। मैं क्या, मैं इतने अच्छे से, ये आगे आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे तो भी इतना समझा के कोई नहीं पढ़ेगा, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। तो ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट इसका हुआ, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, अरे मैंने कुछ अंडू, कुछ एडिट अंडू, एडिट अंडू, एडिट अंडू, एडिट अंडू, क्या चीज डिलीट हो गई है? कंट्रोल सेट, कुछ चीजें डिलीट हो गई थी, मुझे दिख नहीं रही थी। ओके, सो जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है दैट वाज फॉर डी, अनदर स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पर एंटर हुई 1 2 3 ना। जैसे ही ये लूप कंप्लीट हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा, अगेन आर एम्प्टी हुआ, दैट मीन्स दिस स्क्वायर,
That means this square bracket is closed and then again this square bracket is closed. This way it is entering पहले सारे 1 रो की वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरे रो की वैल्यू। समझ में आ रहा है? कंट्रोल Z, क्यों ये डिलीट हो रहा है बार बार? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म होते ही दूसरा एंड सो देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। डी डॉट अपेंड और कर दिया। अब यहाँ पे एंटर मारता हूँ और यहाँ पर आके सिंपली प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट क्या, मैं लूपिंग से ही करूंगा, अच्छा लगता है। प्रिंट रो वैल्यू मैट्रिक्स या 2D एरे कुछ भी। बैकस्लैशन की जरूरत नहीं क्योंकि प्रिंट अपने आप नीचे लेके आएगा। बैकस्लैशन तब यूज करते हैं जब अपने को लाइन चेंज करनी होती है। प्रिंट बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज करता है। जब लाइन नहीं चेंज करनी होती है प्रिंट के लिए, देन ओनली वी यूज एंड। ओके, फॉर आई इन रेंज m, for j in range n, print d ij and equals to okay, run module, 2 rows and 3 columns, 1 2 3 columns, just see, and then again second row 5 6 7। प्रोग्राम बनाने में बेटे आप कितनी भी मुझसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीख लो, इतना ही आपके लिए चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर आप चाहते हो स्क्रीन पे, क्योंकि नॉर्मली वी मेक प्रोग्राम फॉर यूजर्स, तो अगर आप चाहते हो यहाँ प्रिंट करते समय या एंटर करते समय रोज भी डिस्प्ले हो जाए, सो जैसे कि यहाँ पर इसके बाद हो, मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ प्रिंट एंटर वैल्यूज फॉर रो नंबर रो 1, ठीक है। तो अब जब रन करेंगे आप, ये बाकायदा आपको दिखाएगा 2 rows 2 columns, enter values for row 1, ओके। enter values for row 2, 3 वैल्यूज लिया है। ये क्यों लिया है ये देखना पड़ेगा। मैंने तो 2 rows and 2 columns दिए, ये 3 लिखा हुआ है इसलिए बेटा। Okay, so hopefully the concept is clear to you. Please show thumbs up. I'll go ahead. So 2D array समझ में आ गया। अब 2D array के 2 या 3 दो प्रोग्राम होगा, जल्दी से। पहला प्रोग्राम लिखो, write a program to enter a square matrix of size n into n, of size n into n, and find the sum of each diagonal. Find the sum of each diagonal. साइज स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर दी है, 3 to 3, एक ही की जरूरत है, एंटर n ऑफ n वैल्यूज। ये भी n हो जाएगा, ये भी n है ही, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू एंटर हो गई, प्रिंट भी करा दिया, ठीक है मैट्रिक्स को यहाँ पर। अब 1 मिनट मेरी बात सुनो, चाहो तो इसमें बेटर जो तरीका है ऑड मैट्रिक्स का ही सही निकलता है। तो 3 एंटर किया, 1 2 3 1 1 1 2 2 2। अब क्या गलती हुई, कहीं पे से कुछ मिस्टेक, एम आ गया ना ये, ठीक है, रन, ओके, 1, ठीक है, क्या करना, रन इट।
run the program. So 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 1 2 3 1. ठीक है. So when I print, this result will come. Now this is the diagonal number 1 and this is diagonal number 2. ठीक है. 2 4 3 diagonal 2 है, 1 4 1 diagonal 1. ये बात समझ में आई कि हम करने क्या जा रहे हैं? सम ऑफ ईच डायगोनल. 2 डायगोनल से d1 d2 इसका सम निकालना है. सो बेटर है कि ऑड से ही निकले. अब अगर आप चाहते हो सिर्फ ऑड रहे तो फिर इफ भी लगा सकते हैं. इफ n mod 2 इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब ऑड होगा. तो अब बढ़ाते जाओ प्रोग्राम को कितना भी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ, ध्यान देना. d1 एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू 0 दे देता हूँ. d2 एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू, and then I will generate a loop for I in range, and then I will write n. And now I have to find the sum of diagonal 1. So d1 is equals to d1 plus, या शॉर्टकट मार सकते हैं, d1 plus equals to a of या d of I am writing here. And when I have to find out d2, I am writing, ये बहुत सिंपल है, मैं अभी समझा देता हूँ. प्लस इक्वल्स टू d of रो, कॉलम चेंज हो रहा है I, एंड इधर जो हो रहा है दैट इज नंबर ऑफ रोज, वही नंबर ऑफ कॉलम्स है, -1 माइनस I. ओके. एंड फाइनली आई विल राइट इट हियर. ये कैलकुलेट कर देगा. प्रिंट सम ऑफ डायगोनल 1 d1 and print sum of diagonal 2 d2. ठीक. एंड इसको रन करिए. एंटर नंबर ऑफ रोज 3 1 2 3. एक बार देख लीजिए अच्छी तरह. 2 2 1 1 1 1. तो ये आया. अब पहले डायगोनल का सम देखिए. 1 + 2 3 + 1 4. दूसरे डायगोनल का सम देखिए 3 2 5 1 6. ये रिजल्ट समझ में आया? परफेक्टली प्रोग्राम चल रहा है. अब हमें नेक्स्ट इसमें लॉजिक कैसे बना वो समझा रहा हूँ. अज्यूम करो कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से 1 2 3 1 1 1 है मान लो, एंड ये 2 2 3 2 है. सो रिमेंबर दिस इंडेक्स नंबर is basically 0 0. This index number is 0 1. थोड़ा स्पेस दे दें. 0 1 और ये जो है ये है 0 2. इसका ध्यान रखिएगा. इस ये इंडेक्स नंबर है 1 0. ये इंडेक्स नंबर है 1 1 और ये इंडेक्स नंबर है 1 2. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद एंटर. दिस इंडेक्स नंबर इज 2 0. दिस इंडेक्स नंबर इज 2 1 and this index number is 2 2. Okay, so remember that index number. क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ कर दी. उसकी वैल्यू बीच की हटा दी. अज्यूम कर लेंगे अभी. चलो यहाँ पर 2 2 2 2 and 2. ठीक है. ओके. सो अब एक्चुअली आपको पहली बार में सम क्या करना है? 0 0 0 0 1 1 and 2 2. और इधर से क्या ऐड करना है? 0 2 1 1 and 2 0. सो यहाँ पे आई देने का क्यों मैंने रीजन लिया? क्योंकि इंडेक्स रो एंड कॉलम सेम है. रो कॉलम सेम है. रो कॉलम सेम है. अंडरस्टूड निश्चल?
दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आई आई। अब इधर में क्या है, रो 0 है तो आई टी के 0 हो गया। दिस वन इज स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए, तो n-1 दैट इज 3-1 2 2 माइनस 0 2 ओनली, तो फिर 2 होगा, फिर एक आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस हो जाएगा तो 1 होगा, फिर 2 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग। ओके, वेरी नाइस। देखो इंटरेस्ट जिसको है वो क्लास अटेंड करे, नहीं तो मुझे क्या, अपने वीडियोस देख के करो। ये प्रोग्राम हो गया। अब इसी में मैं आपको एक दो प्रोग्राम और करा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, राइट ए प्रोग्राम टू सम फाइंड द सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ईच कॉलम इन ए 2D एरे। एंड दूसरा क्वेश्चन लिखना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ईच रो, हर रो का सम, हर रो का कॉलम। तो अब इसमें हम कर सकते हैं, इतने वेरिएबल की मुझे शायद ही जरूरत पड़े, इसको हटा देते हैं। लॉजिक मेरे पास बहुत सारे हैं, डिफरेंट वेज से आई कैन टीच यू। मैं ये सोच रहा था कि मैट्रिक्स जब एंटर हो रही है उसी समय रो का सम किया जा सकता है, मतलब ये फर्स्ट रो का सम है तो 0 यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर सम आर एस कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ। जब एंटर हो वैल्यू उसी समय ऐड होता चला जाए। यहाँ पे अपेंड हो गया, ऐड हो गया, तो आर एस प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे, बस इतना ही शुरू करना है। और जब अपन रोज सम कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ रो सम भी हो जाए, तो आर एस में वैल्यू आई ना, यहाँ पे करने से तो थोड़ा गड़बड़ाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज हमें मैट्रिक्स प्रिंट भी करनी है, उसके बाद प्रिंट करके यहाँ पे कर लेना इसको। चलो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स यहाँ दे देते हैं। आर एस इज इक्वल्स टू 0 एंड देन हियर आई विल राइट, उसी के आगे सम भी आ जाएगा, है ना। प्रिंट क्यों, आर एस प्लस इक्वल्स टू, ओके, आर एस प्लस इक्वल्स टू जे का कंप्लीट होने तक, मगर रो का चेंज भी करना तो वो प्रिंट में डाल देंगे ना, सही। तो वो होने के बाद फिर चेंज करेगा, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे, मैं चाहता हूँ फॉर्मेट भी अच्छा रहे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर एस, फिर उसका चेंज हो, ये हटा दो, और यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स वैल्यूज विद रो सम, एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम नाउ, रन मॉड्यूल। ओके, वेट, थोड़ी सी चीजें और बढ़ाऊंगा इसमें। अब इसमें एन एम सब कुछ कर सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू input enter number of rows, enter number of columns, okay, then d etc n m n m, ठीक है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। चलो रन करते हैं, run module, okay, so 2 rows and 3 columns, 1 2 3, ये क्या रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, ओके, n ये एम एन था, m
10 m 10 रन करो. ओके, 2 rows 3 columns. A is not defined. ये कहाँ से लिख देता हूँ यार, ए लिखने की आदत पड़ गई है ना. Array for A. Run. Okay. 2 rows 3 columns. So देखिए यहाँ पे क्या आया, 3 2 5 1 6, 2 2 4 and 2 6. मैं यही चाह रहा था कि इसी के साथ साथ सब दिया जाए. क्लियर हो गया? Find the sum of each column. What do you have to do, beta? For that you have to make simple program, same way program बनाओ, and then यहाँ पर I और J में थोड़ा चेंज होगा कैलकुलेशंस में. ठीक है, या अगर सेम भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे J I कर दो, J और I. ठीक है, और विद रो सम की जगह पे कॉलम सम. प्लीज पहले वाले प्रोग्राम को हैव यू नोटेड इनिशियल फर्स्ट प्रोग्राम मैं चेंज कर रहा हूँ, तो सेकेंड प्रोग्राम में अब हो रहा है कॉलम सम के लिए. तो मैं देखो कितने से छोटे छोटे चेंजेस करता हूँ, प्रोग्राम बन जाता है. वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप चाहो तो आरसी कर दो, रो कॉलम सम क्या है, रो क्या है, कॉलम CS. तो नाम से क्या होता है, कंप्यूटर को कुछ थोड़ी पता है क्या है CS. ठीक है, अब ये वाला जो है ना बेटा, इसको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा. ये चक्कर क्या होगा, नहीं तो वो उस जगह पर आ जाएगा. तो अब हम इसके लिए भी, मेरे पास लॉजिक तो है, पता नहीं आप समझ लो. मैं एक काम करता हूं, C of स्क्वायर ब्रैकेट I is equals to 0 and C of I, समझ पाओगे कि नहीं पता नहीं, इंडेक्स नंबर 0 में स्टोर हो जाएगा और फिर मेरे को आसानी मिल जाएगी. और I इन रेंज जितने कॉलम्स हैं, मगर ये सारी चीजें कैलकुलेशन का पार्ट कहो तो अलग कर दूं, प्रिंटिंग पार्ट अलग कर दूं, निश्चित कर दूं कैलकुलेशन, ताकि ये कंफ्यूजन आपका दूर भी हो जाएगा. सो एक काम करते हैं, इसमें अभी तक जितनी प्रोसेस की है कंट्रोल Z. अब सही कर देता हूँ कॉलम सम. ये तो प्रिंट वाला रहने दो. क्लास का टाइम कैसे खत्म, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, टाइम हो चुका है, इट्स एक्सीडिंग माय टाइम. ओके, सो प्रोग्रामिंग करने में जब इनग्रॉस हो जाता हूँ तो ध्यान ही नहीं रहता है. चलो ओके, सो माय नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे. बाय बेटा. ये प्रोग्राम मैं अगली क्लास में कर दूंगा. लॉजिक मैं बता रहा हूँ, बहुत लॉजिक्स है अलग, जैसे आप सोच लो उस समय. ओके, so take care of yourself, we'll meet in the next class. Till then, goodbye, have a nice day.